So now we will see that how to ensure the completeness of the requirements. हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि जो requirements हैं वो complete हैं. Some aspects of the completeness can be judged by any competent reviewer who critically assesses the requirement set. So हम अपनी requirements के जो कुछ ऐसे aspects हैं उनको हम judge कर सकते हैं for completeness purpose by some competent reviewer की मदद से, जो basically on the basis of critical analysis he can assess whether the requirement set is completed or not. So basically जो हमारा वो competent reviewer है वो अपनी expertise और knowledge की basis पे ये judge कर लेगा कि आया जो set of requirements जिनको वो उसने critically analyze करना है या assess करना है, क्या वो complete set of requirements हैं या नहीं. Also, some aspects of completeness can be assessed even by developer with no special understanding of the application. इसी तरह से कुछ ऐसे aspects होते हैं requirements के जिनको automatically आपका जो developer है वो assess कर लेता है, judge कर लेता है, without knowing the special understanding of the application. जरूरी नहीं है कि उसके application की कुछ खास समझ हो, detailed या depth में knowledge हो, वो कुछ ऐसी requirements को खुद से assess कर लेता है. For example, if the requirement set says the system shall accept a single numerical input from the user. For example, हमारे पास एक set of requirements हैं जिनमें कहा जाता है कि जो system हमने build करना है उसने क्या करना है, उसने accept करना है, क्या accept करना है, single numerical input को from the user and returns the square root of that number. और basically system को आप एक single numerical input देंगे और उसने return करना है square root उस number का. The obvious question is, what happens if the user tries to input a negative number? So basically हमारे developer को पता होगा कि जी अगर हम let's suppose कोई भी numerical value input करेंगे in order to calculate the square root of that particular number, so in case कि अगर हमारा user कोई negative number enter कर देता है तो हमारे system का क्या response होना चाहिए. So these are those things जो generally हमारा developer assess कर सकता है in order to ensure the completeness of the requirement or the system. So now we will see the completeness in non-functional requirements. अब हम कैसे non-functional requirements को कह सकते हैं कि they are the complete requirements of the system. It's more common to overlook aspects of performance and design constraints or assumptions about external interfaces to other systems. So non-functional requirements जो होती हैं वो हमारी डिजाइनिंग कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस हो सकती है या कुछ जर्नल assumptions हो सकती हैं. Our advice is to create a simple checklist that follows the guidelines we have provided in the areas of usability, reliability, performance, supportability, and that also covers the right questions to ask in the search for design constraints. So basically we should create a simple checklist. इसके लिए एक simple checklist create करनी चाहिए जिसके अंदर हमारे पास वो तमाम measures होंगे जो performance related measures हैं, usability related measures हैं, reliability, performance, portability factors को हम discuss करेंगे और इसके साथ साथ हम उन right questions को भी discuss करेंगे जो basically हमारे design constraints हैं या उन design constraints को search करने के लिए पूछे जाने वाले questions हैं होंगे. That's why the developers and the users can at least be sure that they have asked the appropriate questions while composing the requirements. So हमारे developers और users को ये चीज श्योर करनी चाहिए at least कि उन्होंने during the composing of requirements or specifying the requirements or writing the requirements, they have asked the right and appropriate questions related to the non-functional requirements of the software. Again, the no-voice user might complain, well, of course, I want the system to have good performance. That's so obvious that I don't see why I need to specify it. The expert developer knows that it is usually important to specify performance requirement in terms of maximum response time or average response time or perhaps
a statement that 90% of all transactions will have a response time less than 3 seconds. So let's suppose कि एक नो वॉइस यूजर है, वो कोई कंप्लेन करता है, वो आपको बताता है कि जी उसको एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. सो इट इज ऑब्वियसली ये वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं ऑब्वियसली जिनको मस्ट हमने एड्रेस करना है, हमें इनको स्पेसिफाई करना है कि एक अच्छा सिस्टम कब होगा, जब उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी. सो जो एक्सपर्ट डेवलपर्स हैं उनको पता होता है कि यूजुअली जो है हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ वी कैन से मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम सिस्टम का क्या होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि 90% केसेस में जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाएंगे उनका रिस्पॉन्स लेस देन 3 सेकेंड्स में जनरेट होना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स जिनको हमें मस्ट कंसीडर करना है इन ऑर्डर टू ensure the completeness of non-functional requirements. So then we have the completeness of functional requirements. The issue of missing functionality is more difficult. Again, this is very important to consider कि अगर हमारे सिस्टम की कोई सिंगल फंक्शनैलिटी भी मिसिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट हमने बिल्ड किया वो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, और हमने ये श्योर करना है बेसिकली कि जो सॉफ्टवेयर हम बिल्ड करें वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो. So we must ensure that the functional requirements should the complete set of requirements before implementing the system. So without a great deal of expertise in the application domain, it is difficult for the technical developers to know whether the set of requirements has omitted an important area of functionality. So हमारे डेवलपर्स के लिए ये जानना, ये असेस करना काफी मुश्किल है किसी भी टेक्निकल प्रोजेक्ट के लिए कि क्या जो रिटन स्पेसिफिकेशंस हैं, जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, उनमें आया कोई इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हमने ओमिट कर दी है, मिस कर दी है. आफ्टर ऑल, सिंस ऑल द फंक्शनैलिटी इज न्यू, हाउ डू यू नो हाउ मच मोर देयर शुड बी. सो एक नया सिस्टम एक डेवलपर के लिए हमेशा न्यू होता है. सो वो कैसे ये जज करेगा कि जो रिक्वायरमेंट्स उसके पास हैं क्या उनमें मजीद सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी उसको रिक्वायर्ड है या नहीं. सो समटाइम्स कुछ फंक्शनैलिटीज, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारे यूजर को ज्यादा इल्म नहीं होता, एंड दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. सो किसी भी सिस्टम को कंप्लीट बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो फंक्शनल पार्ट है, जो फंक्शनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे उस सिस्टम की, दैट शुड बी अ कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू इंश्योर the success of the project. So we can assure the completeness by using the prototyping technique. So storyboarding, requirements, reviews and prototyping the system by using an iterative development approach will catch many to most of these problems. स्टोरी बोर्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम इमेजेस या सेट ऑफ स्केचेस बना लेते हैं और उन स्केचेस के थ्रू हम अपनी पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटी को मॉडल कर देते हैं इमेजेस की शक्ल में, डायग्राम्स की शक्ल में. और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, उसके फ्रंट एंड्स को डिजाइन कर देते हैं, मॉडल कर देते हैं. सो सिस्टम के डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करके यूजर की मदद से उनको एवेलुएट करवा के हम अपने सिस्टम की कंप्लीटनेस को जज कर सकते हैं. हम उन रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीटनेस को जज कर सकते हैं. हम उन मॉडल्स की एवेलुएशन के थ्रू ये फीडबैक ले सकते हैं कि आया जो सिस्टम हम बिल्ड कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन ऑर्डर टू कंप्लीट द फंक्शनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स we need to know each and every functional requirement of the system. अगर आप एक रिक्वायरमेंट को भी मिस करोगे तो सूरत में क्या होगा, सिस्टम फेल हो जाएगा. सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज फॉर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारी डिजाइन कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, ठीक है जी, हमारी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं. हमारा सिस्टम यूजेबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए. तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जो हर दफा आपको यूजर स्पेसिफाई नहीं करेगा. यू नीड टू गेट देम बाय योरसेल्फ. सो आपके डेवलपर को पता होना चाहिए कि हम किस तरह से परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं. मींस कि 90% ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है हमारे सिस्टम की ऐसी होनी चाहिए
जिनका रिस्पॉन्स टाइम अगर 3 सेकेंड से लेस होगा तो इट मीन्स कि वो एफिशिएंट है। इसी तरह हम अपनी कंप्लीटनेस को वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोटोटाइप्स और मॉडल्स और डिफरेंट टेक्निक्स, जिनके थ्रू हम पार्शियली अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर वो सिस्टम जो है वो यूजर से एवेलुएट कराएंगे, और यूजर जो रिस्पॉन्स या फीडबैक जनरेट करेगा उसकी बेसिस पे हम अपनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन भी करेंगे और सिस्टम को कंप्लीट भी कर लेंगे और बेहतर भी बना लेंगे।